Most people think that cracking and hyping internship and job is very hard. But my friend who is just in third year has cracked a 22,000 per month internship and he is able to convert this internship into the PPO. But how he achieve all this thing? I am today sitting with him and breaking down everything, how he cracked this internship, how he prepared his resume and how many challenges he has faced during achieving this internship. So if you want to crack such an internship, please watch this video till the end. So today we have Aryan. He's not from any NITs, not from any IITs and not from any fancy background. Still he is able to crack this 22,000 per month internship. So Aryan, please give your introduction to our audience. Good morning. I am a third year student of Artificial Intelligence and Data Science from Professor Ram Meghe of Institute of Technology and Research. Currently, uh, I am in 6th sem. Um, Actually, I've got a, a full-time job from Edera after completing a internship there 5 months. Yeah, Okay, Aryan, so you have cracked this internship. So very, very congratulations to you. Okay. And I want to thank you know for that this. before cracking this internship, what are you doing? You are doing developments or your college life. What about before this cracking internship? Mm, Actually, I started my internship in not in this company, in other company. This is in Gautech INC. It is also MNC, US based company. Uh, in third year itself, in the starting of third year. Actually, before that, I have explored that all fields means which is familiar for me and which is I can give my 100% and I have interest in that regarding that DSA development. I've done some development projects using a React.js and something um, and explore another field also like cybersecurity. And finally, I found my interest in data science related. So I decided to pursue in this career. Okay, that's all great. Okay, so आपने थर्ड ईयर में इंटर्नशिप उसके पहले भी एक इंटर्नशिप की थी हाँ मतलब मीन्स दिस सेकेंड इज ईयर योर वैसे ही सेकंड. खत्म हो गया था. यस, या यस. दिस इज योर सेकेंड ईयर सेकंड जैसे ही इंटर्नशिप. खत्म हो गया था. या सेकेंड ईयर खत्म होने के बाद वैसे मैंने जूम लिंक्डइन पे अप्लाई करना शुरू कर दिया था. ओके, और फिर मुझे वो इंटर्नशिप मिली थी, वो 5 महीने चला. एज अ AI प्रॉम्प्ट इंजीनियर था मैं उसमें. ओके, 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 एंड And after that, before ending that internship, before 2 months, I got offer from this internship also. Means I continue applying for the job, for the ओके, internship because it is free internship. They are not giving a stipend for me. ओके, So after in the last 2 months, I continue both internship and Gautech INC and Edera also. And after the first company internship was over, I get a certificate from that. I give my 100% in this Edera. And after working 5 months for free, means doing internship, then I got a full-time payroll there. And it's been a 3 month I'm working there, and the payroll is started from 16th of December, recent one. ओके. So, Yeah. from where you find this internship, like from LinkedIn, Intershala, or did you get Uh, any referral for this internship? no, I didn't get any kind of referral. Actually, at the time of in second year, I didn't explore Internshala and all other platform regarding this. So I'm stick to the LinkedIn, and I applied. Means I used to search there that means firstly I have decided that means I have to go to my goal is to go to the data science engineer or LLM, Gen AI related to this field only. So Okay. they directly freshers we can't go to us. So I decided to Hmm. go with a starting path as a data analyst, then data engineer, data sciences, and LLM model like that. Okay. So I used to search their data science, data analyst internship there on LinkedIn, and daily I have applied means average daily I'm applying for 20 to 25 internship daily. Maybe they Okay. are easy apply on their company careers, and Hmm. after that I got offer from that means I have applied near about 150 to 200, then I got just 2 offers from that. ओ माय गॉड. बहुत से लोग क्या करते हैं डेली. मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ. एक दो लगा देते हैं, फिर 2 मंथ्स वेट करते, आया नहीं आया, रिजेक्शन का मिला है तो बस कंटिन्यू चलता रहता है. आपने लाइक 150 200 इतने अप्लाई किए तो कंपनीज के लिए. सो कभी डिमोटिवेशन वगैरह कुछ आया कि इतने सारे अप्लाई कर रहे, कुछ हो रहे, कुछ रिजेक्शन मिल रहे, कुछ हो रहा है आगे?
नहीं, इतना तो कुछ नहीं आया था, मीन्स इन द सेंस जस्ट सेकेंड ईयर खत्म हुआ था, टाइम था। तो यस यस। बस लिंक्डइन खोलते खोलते दिखते जा रहा था सबके जॉब जॉब हम्म डिस्क्रिप्शन, पढ़ रहा था कि क्या क्या स्किल्स हम्म चाहिए, उधर से सीख रहा था और वही डेवलप कर रहा था और अप्लाई करते जा रहा था मैं। यस यस। तो ऐसे ही अप्लाई करते करते मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले, बट मिल गए, लकीली दो मिल गए थे। यस तो यस वही ओके। कंटिन्यू करा था। सो और लकीली लाइक दोनों इंटरव्यू भी क्रैक कर दिए थे फिर। या या दैट्स ग्रेट ओके। सो लाइक मुझे लगता है कि बहुत से लोगों का क्या होता है, लाइक अप्लाई तो कर लेते हैं बट उनका रिज्यूमे उस फॉर्मेट में नहीं होता। लाइक बहुत से लोगों को रिज्यूमे फॉर्मेट का ही पता नहीं होता। अगर रिज्यूमे फॉर्मेट पता है तो उसमें क्या डालना है क्या नहीं, क्योंकि आप किसी स्पेसिफिक डोमेन के लिए डाल रहे हैं, जैसे आपने जैसे डेटा एनालिसिस के लिए डाला, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग क्या स्किल चाहिए, तो कैसा होता है पोर्टल पे नहीं क्या होता है आपके लिए पूरी डिटेल स्किल दी जाती है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, रिज्यूमे वो स्किल होती ही नहीं है फिर भी अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद उन्हें क्या होता है, रिजेक्शन मेल ऑफर होता है, ठीक है। तो आपने लाइक आपका कैसा रिज्यूमे प्रिपेयर किया, लाइक वो बता सकते हैं, क्योंकि मैंने भी मेरा जो रिज्यूमे आपको शेयर किया है, तो उस लाइक आप पहले बताइए कि आपका रिज्यूमे कैसा था, कैसे प्रिपेयर किया, उसके बाद मेरे रिज्यूमे में क्या डिफिकल्टीज है, लाइक क्या प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से मैं लाइक किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई करूंगा, लाइक मेरा फ्रंट एंड के लिए। तो मैं अगर फ्रंट एंड के लिए अप्लाई करूंगा तो मोस्टली नहीं होगा शायद, क्योंकि थोड़े कम खामियां है उसमें। तो अकॉर्डिंग टू आपके लिए लाइक कैसे कर सकते हो उसका। सो मैं स्क्रीन पर दूंगा एक रिज्यूमे टेम्पलेट जो मेरा दिया हुआ है आपको, तो आपके अकॉर्डिंग क्या है। सो स्टार्टिंग विद माय रिज्यूमे, मेरे रिज्यूमे से ज़्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि तब सेकेंड ईयर ख़त्म की थी, एक्सपीरियंस इतना कुछ नहीं था, जस्ट वो GDSC थ्रू गूगल क्लाउड का थोड़ा एक्सपीरियंस लिया था। वो मीन्स GDSC थ्रू नहीं लिया था, बाहर से ही लिया था, मीन्स गूगल हम्म क्लाउड आर्केड प्लेटफॉर्म, कॉलेज से तो नहीं लिया था। तो हम्म उसी में गूगल क्लाउड के स्किल्स JNA LLM वगैरह सब कुछ कर लिए थे, और ओके। वही डाला था उसमें। और हम्म एक सिंपल सा टेम्पलेट रखा था मैंने, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, स्किल्स रखे थे, जो हम्म स्किल्स मुझे इजी अप्लाई, लिंक्डइन पे इजी अप्लाई करते करते वक्त, जॉब डिस्कशन पढ़ते पढ़ते वो स्किल याद हो गए थे, उस पर वर्क किया था, हम्म वो डाल दिए थे। हम्म एंड समवॉट सर्टिफिकेशंस डाल दिए थे। हम्म एंड मैंने प्रोजेक्ट किए हुए थे, 3 प्रोजेक्ट किए हुए थे, आई नो दैट हाउस प्रिडिक्शन मॉडल ऑफ डेटा एनालिटिक्स, ओके and another one is a Titanic word data science project. It is a very basic ओके project, and another one ओके। plant crop disease prediction, which हम्म। which I have performed in hackathon also. These are the Yeah, major product or minor products, like projects you। projects. These are हम्म the minor projects. At that ओके time in the second year itself, it's a very ओके low level project. Yeah. ओके। सो लाइक क्या है, मैंने मेरा रिज्यूमे आपको शेयर किया है, तो आप थोड़ा रिज्यूमे हाँ, देखिए, आपको क्या लगता है कि क्या कमी है मेरे रिज्यूमे, आप वो देखिए एक बार। हाँ, लाइक मैं जिससे ऑडियंस को पता चले, लाइक लाइक ऑडियंस और मैं लाइक सिमिलर थोड़ा सा पकड़ सकते हैं, कि नॉर्मल सा रिज्यूमे बनाए जिसमें लाइक मेरा सिर्फ फ्रंट एंड का ये रिएक्ट जैसे डाला है मैंने, और थोड़े HTML से जावास्क्रिप्ट और थोड़े अदर प्रोजेक्ट्स है मेरे फाइनल ईयर के। तो लाइक अगर जिन लोगों के लाइक ऐसे रिज्यूमे हैं तो क्या कमियां आ सकती है वो देखिए लाइक। सो यहाँ पे सबसे पहले फोटो नहीं चाहिए था, क्योंकि हम्म एज स्पेशली अगर इंडिया में जॉब अप्लाई कर रहे हो एज इंजीनियरिंग रिलेटेड, सो हम्म। फोटो नहीं है। मे बी MBA का थोड़ा अलग क्राइटेरिया होगा, बट अपने लिए तो नहीं है। और मोस्टली रिज्यूमे में फोटो चाहिए नहीं से। नहीं, मीन्स आई हम्म। थिंक चाहिए नहीं वैसे। क्योंकि एंड कभी कभी क्या होता है आपके लाइक इमेज से वो लाइक अनुमान ऐसा लगा लेते हैं कि क्या है क्या नहीं, हाँ, वो उससे बोल सकते कि एक बैड वो इंप्रेशन पड़ता है। जजिंग कर सकते हैं वो जज कर उसके लिए। सकते हैं। यस यस। तो यहाँ पे जो लिंक्डइन है, मेल हम्म बीच में चाहिए था, और जैसे गिटहब इधर है और लिंक्डइन इधर चाहिए था, हम्म। मीन्स इसे थोड़ा सिमेट्रिकल पता लग सकता था। ओके ओके हाँ, और ये कॉलम ऊपर चाहिए था, अ, और अमरावती महाराष्ट्र ये नीचे चाहिए था, मीन्स ओके ओके आफ्टर तिलक भूसारे, दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके ओके। ऑब्जेक्टिव में 3 to 4 लाइन्स चाहिए, क्योंकि उससे इम्प्रेशन थोड़ा ज़्यादा गिरता है उसमें, हम्म। अपनी ओवरऑल रिज्यूम की समरी आ जाती है उसमें। ओके। एंड अनदर थिंग मैं प्रेफर करता हूँ, ये एजुकेशन का सेक्शन है सबसे नीचे डाल दो, हम्म। क्योंकि मीन्स जस्ट लाइक आपकी जो स्किल्स पहले आप वो शो कीजिए। हाँ, ओके। हाँ। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 लाइन के बीच जितना मीन्स स्पेस है, और यहाँ पे हम्म थोड़ा बहुत ज़्यादा है, हम्म। तो ये अलग से दिख के आ रहा है, मीन्स इतना अच्छा नहीं लग रहा है। ओके। हम्म, तो टेक्निकल स्किल्स में स्पेसिंग बहुत ज़्यादा होगी, बस हम्म। नॉर्मल चाहिए था ये, वो ओके थोड़ा ओके करना पड़ेगा और स्किल्स ओके। बढ़ानी पड़ेगी। हम्म।
हम्म लाइक ये मेरा लाइक मीन्स मैंने कैसे नॉर्मली लाइक कॉग्निजेंट और एसेंचर के लिए अप्लाई करने के लिए किया था। तो मेरा अभी तक लाइक ओके HTML से जावास्क्रिप्ट और React.js इतना ही हुआ था। तो मैंने उतने लाइक एंड्रॉइड हाँ स्टूडियो वगैरह विजुअल स्टूडियो गिटहब मतलब इतना एक्सप्लोर किया था, तो इतना मैंने डाल हम्म दिया। लाइक अगर मेरा हाँ फ्रंट एंड वगैरह हो जाता है पूरा लाइक फुल स्टैक, तो मैं ऐड ऑन करूंगा। ओके। हाँ नहीं इन द सेंस अभी अगर मैंने जितने जॉब डिस्क्रिप्शन देखे तो उसमें जैसे लीडरशिप क्वालिटी कम्युनिकेशन स्किल्स हम्म। वो स्किल्स भी मांगते हैं। तो अगर ओके। भरा भरा दिखने के लिए चाहे ना तो फिर अपन इधर पर्सनल दूसरा कुछ नाम देके इधर वो स्किल्स भी ऐड कर सकते हैं। मीन्स हम्म। ग्रुप टास्क में काम किया लाइक दैट ओके। मीन्स इन द सेंस ग्रुप डिस्कशन कम्युनिकेशन गुड हम्म। कम्युनिकेशन स्किल्स लाइक दिस हम्म। एंड ओके ओके। जिनके अभी आपके परसेंटेज तो सही थे अगर जिनके परसेंटेज कम हुए तो ये हम्म। स्किप भी कर सकते हैं ओके। तो हाँ, वो बेटर रहेगा। सीजीपीए में भी, हाँ यस, सीजीपीए में कभी हाँ अगर 7 8 के नीचे है तो स्किप ही कीजिए, बैड इंप्रेशन ही पड़ता हाँ है। वही। और रही बात अभी प्रोजेक्ट के नीचे जो दो हेडिंग दिए हुए हैं हम्म। तो पहला वाला प्रोजेक्ट ब्लैक में दूसरा ब्लू में नहीं, वो ऐसा नहीं क्यों चाहिए हुआ? था। पहले इसमें लिंक हाँ डाली हुई नहीं है। ओके। तो गिटहब पर अच्छा अपलोड नहीं किया है। हाँ, ये दूसरा वाला लिंक हाँ हाँ अपलोड गिटहब पर अपलोड किया है। दैट्स वाई। ओके। हम्म। और इसके जो हेडिंग टू जो है हम्म। इसको बोल्ड नहीं है और इसमें बोल्ड है ये नीचे वाले इसमें वो ओके थोड़ा ओके ओके। हम्म। अच्छा नहीं दिखता। और हम्म। फाइनली आ गए अचीवमेंट्स की तरफ। यहाँ पे ना अचीवमेंट्स और सर्टिफिकेशन का सेक्शन अगर अलग अलग रखे तो वो थोड़ा बेटर हम्म। रहेगा मीन्स इन द सेंस ऑफ 3 स्टार इन C++ एट हैकर रैंक ये हम्म। अचीवमेंट्स में डाल सकते हैं। ओके। और लीड कोड 50 डे बैच ये भी अचीवमेंट्स में डाल सकते हैं। हम्म। और रही बात सर्टिफिकेशन जैसे यूडेमी कोर्सेरे का तो हम्म। वो नीचे डाल सकते हैं। ओके और ओके। कभी कभी क्या होता है जब अपन जॉब अप्लाई करते हैं ना तो हम्म। वहाँ पे कभी कभी फिल्टर आ जाता है कि सर्टिफिकेट्स नेसेसरी है इसमें चाहिए ओके। जैसे मैं यस यस। जावा का सर्टिफिकेट चाहिए अगर आपके पास नहीं होना तो कुछ नहीं करना जावा का डाल देना और साथ में सामने यूडेमी या कोर्सेरा कर लिख देने का। फिर हम्म। जब वो अगर बाई चांस अगर सिलेक्ट हो गया ना तो तभी के तभी यूडेमी के कोर्स ले लेने का आई थिंक 300 के आसपास आ जाएगा हाँ, एक वो आधा नॉर्मल 500 कोर्स तक आ जाता है और आराम से। हाँ और चार हम्म। सौ 500 रुपये का रहेगा आई थिंक तो यस यस। 3 4 घंटे का हो भी जाएगा और सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा मतलब अपन वो यस फिल्टर यस। निकल सकते हैं। तो यस। ये कुछ पॉइंट्स थे रिज्यूम के लिए जरूरी। यस यस। हाँ सो लाइक मुझे भी लगता है ऐसे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं आपके रिज्यूमे में। ओके। लाइक ये रिज्यूमे मैंने कॉग्निजेंट के लिए डाला था, इसलिए मैंने इसमें इमेज डाली थी। ओके, तो क्योंकि कॉग्निजेंट के लिए और आपके इमेज होती है, तो इमेज निकाली तो मेरा ऐसा कुछ रिज्यूमे था। तो आप लोग देख सकते हैं आपके लाइक ऐसा रिज्यूमे नहीं है तो लाइक भैया ने जो आपको बताया, तो आप वो सारा देख सकते हैं आपके रिज्यूमे क्या कमतरता है वगैरह कुछ है, तो आप वहां से देख सकते हैं और आपका रिज्यूमे जो इम्प्रूव कर सकते हैं। लाइक इन्होंने बताया जैसे ऑब्जेक्टिव, लाइक मुझे पता चला, लाइक मैंने जितना देखा है, तो कभी कभी बोलते हैं ऑब्जेक्टिव भी मत रखो डायरेक्ट आपका। लाइक स्टार्टिंग में जो स्किल्स वगैरह, लाइक मेरी फ्रेंड है, उन्होंने अमेजोन क्रैक किया है, तो रिसेंटली उनका भी मैंने देखा था, तो ऑब्जेक्टिव वगैरह नहीं था उनका। डायरेक्ट लाइक उनका बस इंटर्नशिप्स वगैरह भी थी, टेक्नोलॉजीज भी थी, प्रोजेक्ट्स भी थे अच्छे से। तो उन्होंने ऑब्जेक्टिव वगैरह स्किप ही किया था डायरेक्ट से। उनका स्टार्टिंग में जो टेक्नोलॉजी स्टैक वगैरह है वही था पूरा, लाइक CGPA वगैरह ये सब था, और प्रोजेक्ट्स और अचीवमेंट्स ऐसा ही था। ठीक है। तो शायद मैं आपको लाइक डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दूंगा, और आपका भी रिज्यूमे है तो उसकी भी मैं लिंक आपके हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। हाँ तो दिस इज ऑल अबाउट और एक रिज्यूमे। पॉइंट ओके। यस यस। एक पॉइंट याद करना ऐड करना चाहूँगा अगर ज़्यादा मीन्स अगर ऑब्जेक्टिव से अगर इम्पोर्टेंट अगर कुछ और है जो रिज्यूमे हम्म। में नहीं आ रहा है तो अपन हम्म। ऑब्जेक्टिव स्किप कर सकते हैं बट एज अगर हम्म। देखा जाए थर्ड ईयर फाइनल ईयर अगर प्रेशर, कुछ यस। इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है एज अ फ्रेशर अगर हम्म। देखा जाए तो अपन को यस यस। ऑब्जेक्टिव रखना ही पड़ेगा क्योंकि भरा भरा थोड़ा दिखना अच्छा रहेगा। यस और यस। अनदर थिंग ये थोड़ा अलग उठ के आ रहा है विच इज़ हम्म। नॉट गुड तो अपन ओके। ब्रैकेट में भी लिंक डाल सकते थे समथिंग गिटअप करके यस यस और यस। उसको अंडरलाइन कर सकते थे तो हम्म। वो यस, थोड़ा बेटर रहता था। दैट शुड बी गुड। ओके। या या तो लाइक दैट्स इट। हमारे ऑडियंस देख सकती है ऐसा कुछ रिज्यूमे है, तो आर्यन ने जैसे जैसे बताए चेंजेस, तो आप वैसे ध्यान रखिए और अपना रिज्यूमे प्रिपेयर कीजिए। तो ये रिज्यूमे मैंने ओवरलिप वेबसाइट से किया था, तो शायद जिनको टेम्पलेट चाहिए तो मैं टेम्पलेट की लिंक भी डाल दूंगा ओवरलिप के, तो वहां से आप ऐसे रिज्यूमे मतलब बना सकते हैं। ठीक है। हाँ तो लाइक और रिज्यूमे वगैरह कैनवा तो, वगैरह पे भी मिल जाएगा। हाँ, इस कैनवा में भी मिल जाता है। हाँ ठीक है, कैनवा में भी बहुत सारी वेबसाइट है, ऑनलाइन फ्री वेबसाइट भी रिज्यूमे के लिए मिल जाते हैं, तो वहां से भी कर सकते हो। ओके।
तो मुझे लगता है कि अगर जिन लोगों को डेटा एनालिस्ट रोल के लिए प्रिपेयर करना है, लाइक आपने जैसे प्रिपेयर किया, तो क्या क्या हम्म। स्किल्स उनको उनके लिए चाहिए? आप अगर इंटर्नशिप क्रैक कीजिए या फिर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो एज अ डेटा एनालिस्ट आपको क्या चाहिए? एज अ पहले फ्रेशर बताइए, फिर जॉब के लिए बताइए। सो एज अ फ्रेशर सबसे पहले एक्सेल करना पड़ेगा काफ़ी अच्छे से। हम्म। एंड एक्सेल जैसे होता है तो एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल करना पड़ेगा। एक तो टैबलू करो या पावर बीआई करो, बट पावर बीआई हम्म। की डिमांड थोड़ी ज़्यादा है तो आई थिंक पावर यस। बीआई करना बेटर रहेगा। यस यस। एंड आफ्टर दैट यू कैन गो विथ एसक्यूएल। ओके। मीन्स पाइथन तो मस्ट करना ही है, पाइथन बेसिक बेसिक चल जाएगा, बट एसक्यूएल पे हम्म। इतना मीन्स जितना अच्छा करोगे ना उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। हम्म। सो डेटा एनालिस्ट के लिए इतना काफ़ी है, मीन्स एज अ फिर बिगिनर के लिए सफिशिएंट है, मीन्स। फिर टूल हाँ। सफिशिएंट है। और अगर हम जाए एक जॉब के लिए, लाइक इंटर्नशिप का थोड़ा तो हो गया लाइक बेसिक लेवल पर, अगर हम एक जॉब के लिए जाते हैं तो लाइक आपके अकॉर्डिंग क्या हाई स्किल्स लगेंगे उसके लिए, या फिर कुछ उसके मेजोरिटी लिए लगेंगे उसके लिए फिर एज ए एचआर वो ढूंढेगा कि उसको थोड़ा एडवांस भी आता हो, तो एज अ मीन्स डेटा हम्म। एनालिस्ट के ऊपर की फील्ड डेटा इंजीनियरिंग है तो उसका हम्म। भी थोड़ा बहुत आता है। तो ओके। इन द सेंस क्लाउड का भी एक्सपीरियंस चाहिए, अजूर का चाहिए, या फिर ओके। एक आधा अजूर साइनप्स एनालिटिकल टूल है एएसए हम्म। अजूर का, हम्म। जिसमें डेटा को एनालिस कर सकते हैं अपन, वो यस भी यस। सीखने के लिए वो लग डाल सकते हैं। या फिर हम्म। अभी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है स्नोफ्लिक करके, ओके। उस पे भी एनालिसिस होता है। हम्म। तो वो भी डाल सकते हैं, तो ओके थोड़ा ओके। इम्प्रेशन ज़्यादा गिरेगा। So now moving towards our next question. So our next question is DSA versus any specialization. So Aryan, आपका क्या कहना है, लाइक डीएसए वर्सेस स्पेशलाइजेशन क्या चूज करना चाहिए एज अ फ्रेशर? बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है सबकी अपनी अपनी चॉइस है। बट यस अगर यस। देखा जाए तो मैंने भी बहुत किया था कि रिसर्च और रिसर्च वगैरह की थी। तो हम्म। मतलब फर्स्ट थिंग तो मेरा इंटरेस्ट तो स्पेशलाइजेशन में था इसलिए मैं गया। बट हम्म। अगर बाकी के फैक्ट्स अगर देखे तो एज अ डेवलपमेंट की तरह जहाँ से मीन्स जिसका रूट डीएसए की तरफ से जाता है, हम्म। तो पहली बात कंपटीशन तो सभी इसमें है, बट यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ज्यादा भीड़ है, मीन्स इन द सेंस ऑफ जितने भी अगर बड़े बड़े कॉलेज देखो, आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी यस यस। एनएसयूटी दिल्ली गवर्नमेंट जितने भी, वहाँ पे सीएस आईटी ईएक्सटीसी ये तीनों ब्रांचेस के सब लोग डीएसई कर रहे हैं। क्यों? यस यस। क्योंकि उनके थर्ड ईयर में बड़े बड़े एमएनसी आते हैं, यते। प्लेसमेंट उठा के इंटर्नशिप के लिए उठा के लेके हम्म। जाती है और पीपीओ देती है ऑन द बेसिस ऑफ यस। डीएसए ओनली। यस यस। तो वो फर्स्ट ईयर से डीएसए करते ही लगते हुए मीन्स डीएसए ही यस। कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। और हम्म। अ, हम अपन आते हैं टायर थ्री कॉलेज से, अगर टीयर थ्री अपन टीयर अगर फोर से। हाँ, तो डीएसए अगर करना स्टार्ट करे वो भी अभी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, फिर हम्म। मीन्स गैप बहुत ज्यादा रह जाती है उनमें और या उनमें, हमारे तो ऑन अपन कैंपस में कुछ टॉप फायदा ही पर्सन नहीं में है हैं। डीएसए करने का ऑन कैंपस में। अगर आप ऑन कैंपस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अरे स्टिंग के ऊपर पूछते ही हैं ज्यादातर, हैश मैप, उसके ऊपर तो कुछ भी नहीं पूछेंगे। अगर आपको करना है ऑफ कैंपस हाँ कंपनी फोड़नी है, तो आपको डेवलपमेंट और डीएसए के लिए थोड़ा जाना पड़ेगा। ऐसा हाँ है। हाँ, इन कैंपस में भी मीन्स आते हैं, एक्सटेंचर में भी पूछे थे, हम्म। मीन्स ट्रीज पे कुछ जनों को आए थे, कुछ जनों यस। को एरेजोर स्ट्रिंग पे आया था। यस। हाँ। हम्म। सो अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखा जाए, अगर टॉप 5% 10% डेवलपमेंट में अगर जाना है तो उनके साथ ये करना पड़ेगा। अगर अगर स्पेशलाइजेशन में गए ना, तो स्पेशलाइजेशन में सब मास्टर्स वाले जाते हैं। और हम्म। अगर अभी से अगर अपन प्रिपेयर करके जैसे एआईएमएल जैसे ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है, डेटा यस यस। साइंस डेटा एनालिस्ट, सो इसमें कंपटीशन एज कम्पेयर टू वो कम है, और पे लेवल भी ज़्यादा है, मीन्स इन द सेंस ऑफ हम्म। डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है एज कम्पेयर यस टू यस। देम। वहाँ वहाँ डिमांड कम है और सप्लाई बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत तो ज्यादा आई है। यस यस। थिंक हाँ ये प्रेफर करनी चाहिए। और हाइपिंग जॉब्स इसमें थोड़ी ज़्यादा है उस कंपैरिजन से। लाइक मेरे अकॉर्डिंग लाइक ये वीडियो मैंने स्पेशली टीयर थ्री और टीयर फोर मतलब स्टूडेंट्स के लिए बनाए हैं। तो टीयर थ्री टीयर फोर हाँ, लाइक कॉलेज के स्टूडेंट है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए उन्हें? डायरेक्ट स्पेशलाइजेशन के ऊपर जाना चाहिए या फिर डीएसए? क्या कहना चाहेंगे आप? अगर स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हो तो रिस्क है कि प्लेसमेंट ना लगे कहीं पे भी। बट अगर डीएसए करोगे तो इतना श्योरिटी रहती है कि एटलीस्ट कौन से ना कौन सी कंपनी में प्लेसमेंट प्लेस हो नहीं, जाओगे। बट कॉलेज में भी ऐसा और सिनेरियो है कि कंपनीज ही बहुत कम आ रही है कॉलेज में। लाइक मेरा सिनेरियो लेता हूँ, डीएसए हाँ। अच्छा किया है, डेवलपमेंट लाइक फ्रंट एंड का ही हुआ है, लाइक रिएक्ट जैसे वही चल रहा है, तो कॉलेज में इतनी कम हम्म, अपॉर्चुनिटीज आ रही है। लाइक एसेंचर का दिया, रिजल्ट अभी तक नहीं है, ठीक है। कॉग्निजेंट का तो चीटिंग हम्म, वगैरह खतरनाक उसका विषय है, ठीक है। तो हाँ वो ऐसे में होता लाइक है। मैंने डीएसए किया, लाइक मैं सेकंड ईयर से मेरा डीएसए, लाइक फर्स्ट ईयर से लाइक लैंग्वेज की, सेकंड ईयर से डीएसए शुरू किया, ठीक है।
तो मुझे ऐसा लगा कि लाइक कॉलेज में अगर मैं ऑफ कैंप लाइक ऑन कैंपस के लिए ट्राई कर रहा हूँ तो मेरा डीएसए यहाँ पर इतना मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि कंपनीज ही इतनी कम आ रही है। जो भी आ रही है कुछ चीटिंग से बच्चे क्रैक कर रहे हैं, जिनका कुछ डीएसए भी अच्छा नहीं हुआ वही कंपनीज क्रैक कर ले रहे हैं। तो डीएसए उतना मैटर ही नहीं कर रहा। लाइक हम्म। अभी मुझे लगता है कि मैंने अगर स्टार्टिंग में लाइक सेकंड ईयर में वगैरह एक आधी डेवलपमेंट चालू की होती, तो अभी तक लाइक मैंने कोई इंटर्नशिप वगैरह ऑफ कैंपस कोई देख लिया होता ऑफर वगैरह। तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या कहना है? लाइक ये मेरी सिचुएशन है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की सिचुएशन है, हाँ तो इसके हाँ अकॉर्डिंग क्या कहना चाहेंगे फिर? हाँ, बट यहाँ पे ना दोनों में से एक ही होगा, क्योंकि दोनों करना मीन्स यस थोड़ा वो थे। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर यस यस। अगर कोई अगर स्टार्टिंग से अगर स्पेशलाइजेशन की तरफ जैसे डेटा हम्म एनालिसिस अगर करता था, तो हम्म अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलते थे इंटर्नशिप के, एज यस कम्पेयर यस। टू डीएसए ही कर रहा है। बट हम्म अगर कोई अगर देखेगा ना, तो मीन्स अगर मैं यहाँ पे अगर देखूँ, तो अभी अगले साल मीन्स मेरी प्लेसमेंट रहेंगे, तो हम्म आई एम नॉट श्योर दैट डेटा एनालिस्ट कंपनी will come and hire me in यस यस। campus. But I'm sure that if I do a DSA, then there might be a lot of chances that I will get hired, especially यस in यस। off campus also. So अगर थोड़ा रिस्क लेना है, अगर कंफर्म कर लिया एक स्पेशलाइजेशन में जाना है, तो उसी के चले जाओ, कुछ ना यस कुछ यस। तो मिल ही जाएगा। यस मतलब आपको डीएसए भी और थोड़ा बहुत अभी जरूरी है जैसे और स्थिति डेवलपमेंट भी ऐसी जरूरी है, है। दोनों ही साथ में होना ही हाँ चाहिए। अभी अभी वो नहीं, अपने अपने ऊपर है। जैसे मैंने तो डीएसए को निकाल ही दिया है, फिलहाल हम्म तो कर ही नहीं रहा। हाँ हम्म अगर हाई एंड की जॉब्स में जाएंगे जैसे एलएलएम वगैरह, तो डीएसए मांगते हैं वो, लेकिन वो बाद में देखेंगे। बट अभी फिलहाल डेटा साइंस डेटा इंजीनियर की तरफ जाएंगे, तो डीएसए तो करना ही नहीं है मुझे फिलहाल, यस यस। बाद में देखेंगे। तो मैं हम्म। स्पेशली इसी की तरफ हूँ, मैं कॉन्सिक्वेंस को फेस करने के लिए तैयार हूँ। और ओके। रही बात, अभी अगर टेक्नोलॉजी अगर देखा जाए, तो एआई बूम हो रहा है, और यस यस। रिगार्डिंग कुछ स्टेबिलिटी नहीं है टेक्नोलॉजी में, कुछ कह नहीं सकते हम्म। क्या ऑटोमेट होने वाला है क्या नहीं। यस यस वो तो भी है। कुछ भी करने जैसा मीन्स रिस्क लेने जैसा ही है। सो हम्म। जिसमें इंटरेस्ट है वो ब्लाइंडली फॉलो करो, कुछ ना कुछ तो हो ही ओके। जाएगा। यस यस वो भी है। ओके। हाँ तो अकॉर्डिंग टू मी लाइक मेरा कहना चाहता हूँ लाइक इतना सब सिनेरियो देखा, तो डीएसए कीजिए। लाइक डीएसए आप लाइक क्या होता है, डीएसए करने से आपका लॉजिक बढ़ता है बहुत अच्छे से। लाइक यही कंसेप्ट या आपका लाइक कौन सी भी डेवलपमेंट वगैरह देखेंगे तो वहाँ पर थोड़े बहुत से कंसेप्ट इसके यूज ही होते हैं। ठीक है, जैसे लाइक अपन ने लाइक डेवलपमेंट वगैरह ले लिया, रिएक्ट वगैरह ले कोई फ्रंट एंड भी ले लिया। अगर आपको कुछ करना है लाइक आपके पास लीड्स वगैरह है, तो यहाँ पर अरे का और मैप का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। ठीक है। अगर आप कोई लाइक एंड्रॉइड का देखे, लाइक हमारा प्रोजेक्ट था, उसमें हमने नहीं क्या है ट्री और ग्राफ के कॉन्सेप्ट यूज किए सर्चिंग के लिए। तो अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है लाइक आपके कंसेप्ट वहां पर यूज होते हैं। अगर आप एक अच्छा लाइक एक हाँ इंजीनियर होते बनना हैं। चाहते हैं, एक अच्छे लाइक एसडी रोल या फिर कोई अच्छी सी हम्म, जॉब ऑफ कैंपस निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो आप एट द स्टार्टिंग थोड़ा डीएसए पे फोकस कीजिए। लाइक एक फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में अच्छे से थोड़ा डीएसए कीजिए। सेकंड ईयर तक होने के बाद आप थोड़ा डेवलपमेंट के हाँ लिए मूव ऑन कर सकते हैं, फिर साइमल्टेनियसली थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। स्ट्राइवर की डीएसए शीट वगैरह तो है ही, उससे साइमल्टेनियसली आप कर भी सकते हैं। पर डेवलपमेंट आपके लिए लगेंगे, आपको ऑफ कैंपस लगना है तो सिर्फ और सिर्फ डीएसए से तो आपकी डेवलपमेंट नहीं निकलने वाली। आपको लाइक डेवलपमेंट तो होनी चाहिए, डीएसए प्लस डेवलपमेंट। हाँ। आई एम राइट? और बड़े बड़े प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में डीएसए तो पूछते ही है। पूछते ही है, उनका तो वो बेसिक ही होता है। हाँ, यस। दोनों अगर कर दिए तो फार बेटर ही है। यस यस। हम्म। तो ओके, या नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइक आपने अपना इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर किया? लाइक आपने अभी तो इंटर्नशिप वगैरह क्रैक कर ली, फिर इंटरव्यू का क्या प्रोसेस रहा वहाँ पूरा पूरा? मेरा जब ये सिलेक्ट शॉर्टलिस्ट हुआ था रिज्यूमे, उसके बाद हम्म उनका मेल आया था सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू, एंड हम्म जो इंटरव्यू के स्लॉट्स थे, तो उसमें से एक बुक किया था स्लॉट। उसके हम्म बाद जस्ट नॉर्मल इंटरव्यू हुआ था, क्योंकि एज अ वो मुझे पे नहीं करने वाले थे। यस। सो इतना कुछ राउंड वगैरह नहीं था, जस्ट सिंगल इंटरव्यू हम्म था जो 20-25 मिनट चला था, जिसमें हम्म मेरे रिज्यूम को पूरा निचोड़ लिया उन्होंने, सभी के सभी हम्म पूछ लिए विथ मेरे प्रोजेक्ट्स के साथ, क्लाउड ओके। एक्सपीरियंस के साथ, सब कुछ मैंने जीसीपी का यस ऐड यस। किया था, गूगल क्लाउड का। ओके। सो वही पूछा था, और ये भी पूछा था मेन कि पैसे नहीं मिल रहे तो 100% कैसे दूंगे। मैंने बोला था यस। कि अभी मुझे लर्निंग पे फोकस करना है अर्निंग से अच्छा, डिग्री के बाद तो हम्म देखते ही पैसे कमाना ही है। सो अभी बस सीखना है, तो वो तो काफी अच्छा लगा था उनको, तो उसकी वजह से हम्म मैं सिलेक्ट हो गया था। ओके। तो अभी आपके पास लाइक हाँ स्टाइपेंड भी है, लाइक अभी तो आपने पीपीओ लाइक लाइक कन्वर्ट कर लिया शायद। हाँ, मीन्स अभी मेरा फुल टाइम है, बट हम्म एज अ पे थोड़ा कम है। मीन्स अभी 22,500 मंथली आ रहा है, बिकॉज हम्म थर्ड ईयर। उन्होंने हम्म बोला 6 मंथ्स के बाद बढ़ा देंगे करके, एंड हम्म अनदर थिंग जब डिग्री हाथ में आ जाएंगे तो काफ़ी बेटर हो जाएगा पे।
ओके ओके। हम्म। लाइक आपने फिर फ्री इंटर्नशिप कब तक की, लाइक आपको लाइक कितने लाइक मंथ्स तक उन्होंने पे नहीं किया, 1 भी रुपए? 5 months। 5 मंथ्स हो गए, उसके बाद उन्होंने एडेरा आपको फाइव स्टाइपेंड मंथ्स दिया? हाँ। ओके। हाँ, उसके उसके बाद इंटर्नशिप पीरियड खत्म खत्म हो गया। उसके बाद उन्होंने हम्म। मुझे ऑफर किया फुल टाइम के लिए। फिर मेरा ओके। क्लाइंट के साथ फुल इंटरव्यू हुआ था एक फिर से, हम्म। पे रोल आपका के पहले, क्लाइंट कहाँ है क्योंकि फिर, क्लाइंट से इंडिया प्रोजेक्ट आ बेस्ड है रहा था यूएस ना, बेस्ड? और क्लाइंट यूएसए का। यस यस। यूएस बेस्ड। यूएस बेस्ड है और मेरा, हाँ, तो उनके साथ इंटरव्यू हुआ था नॉर्मली। तो हम्म। ज़्यादा टाइम नहीं चला, 20-25 मिनट वो भी चला। और उसके हम्म। बाद पे रोल पे मैं हायर हो गया। और ओके उसकी ओके उसी वजह से मेरा टाइमिंग भी जॉब रोल का मीन्स 6:30 to 3:30 है, 9 hours ओके। रात को। तो कॉलेज में होगा तो कैसे हम्म। मैनेज कर लेते बाकी सब, कॉलेज और ये? कुछ नहीं, सुबह कॉलेज कर लेता 3-4 घंटे, और हम्म। शाम को ये। ओके। और इतना हेक्टिक काम नहीं है, सब कुछ हो जाता है साथ में, पढ़ाई यस वगैरह। यस। तीन ओके चार ओके। घंटे काम करो, बाकी काम। डेली कॉलेज करते हैं आप? डेली हाँ, मीन्स आया 2 घंटे किया, प्रैक्टिकल किया, चला गया, वही। ऐसा। कॉलेज इतना हम्म। मैटर ही नहीं करता, क्योंकि कॉलेज की अगर स्टडी करते बटेंगे नहीं तो बाहर का कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि कॉलेज में सभी का नहीं, सीन ये मालूम है सभी को, क्या सीन होता है कॉलेज में। मेरी मतलब इंटर्नशिप लगने से पहले भी मैं कॉलेज पे इतना फोकस नहीं करता था, मेरी यस अटेंडेंस यस। बहुत कम रहती थी। सेम। हाँ, जस्ट मैं कॉलेज आता था जस्ट माइंड फ्रेश करने के लिए। घर पे हम्म। रह के क्या करे, बस माइंड यस फ्रेश करने के लिए आता था। यस और यस। बस घर पे आके फिर थोड़ा बहुत देख लिया, पढ़ाई यस वढ़ाई यस। का। हाँ। लाइक अभी मुझे लगता है कि आपने ये इंटर्नशिप क्रैक कर ली, तो लाइक बहुत सारे आपने लाइक रिज्यूमे फिल किए होंगे, बहुत सारी पोजीशन के लिए अप्लाई किया होगा, तो लाइक कितने आपने रिजेक्शन फेस किए, और कैसे आप लाइक उन रिजेक्शन को फेस करते हुए कैसे आपने इंप्रूवमेंट की खुद के रिज्यूमे में, खुद के स्किल्स में, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जब मैंने फर्स्ट 50 मीन्स फर्स्ट 25 to 30 अप्लाई किए थे, मीन्स 3-4 दिन हम्म देके, तो मैं सोच रहा था क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। फिर मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, रिज्यूम यस। कैसे एनहांस करे, फिर हम्म चैट जीपीटी की मदद ली। फिर हम्म थोड़ा आइडिया आ गया कि ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, तो हर एक जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से रिज्यूम एनहांस करते गया मैं। मीन्स हम्म कौन से जेडी में कोई अलग टूल चाहिए था, कोई अलग क्लाउड प्लेटफॉर्म मांग रहा था, हम्म कौन सी इसमें कोई डिफरेंट, तो उस हिसाब से मैं हम्म एनहांस करते गया था। हम्म। आ, बस उतना ही था। लाइक मुझे कहना था, लाइक किसी कंपनी में क्या होता है, लाइक उनके कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, ये स्किल होनी चाहिए। लाइक मेरे रिज्यूमे उनके लाइक उन्होंने 10 स्किल्स दी है फॉर एग्जांपल, और मेरे इसमें सिर्फ हम्म। 5 ही स्किल्स हैं। तो लाइक मेरे इसमें पूरे 10 के 10 स्किल होने चाहिए, या फिर 5 से काम चल जाता है? देखो, ये टाइम पे क्या कर सकते हैं, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना चाहिए। जैसे हम्म भी 5 स्किल अपन को आते हैं ना, और एक हम्म बार 5 स्किल नहीं आते हैं, हम्म तो वो 5 स्किल का ना थोड़े क्वेश्चन वोश्चन देखने चाहिए। मीन्स हम्म चैट जीपीटी को डाल दो 5 स्किल्स, उसको बोलो 50-100 क्वेश्चन ये 5 स्किल के ऊपर, जो मेरे जॉब हम्म डिस्क्रिप्शन हम्म के हिसाब से जो मेरे से पूछ सकते हैं, वो हम्म पूछो। तो वो हम्म क्वेश्चन थोड़े पढ़ देने चाहिए, और वो स्किल हम्म लिख देने चाहिए। मीन्स इन द हम्म सेंस, वो अगर क्वेश्चन भी पूछे ना, तो अपने हम्म। पास मीन्स 80% चांस रहता है कि यस। पर्टिकुलरली आंसर नहीं है, बट उधर अपन घुमा सकते कुछ हैं अपने मालूम। कम्युनिकेशन स्किल से। तो हम्म। उसको पता चल जाएगा कि बंदे ने काम किया हुआ है। यस यस। सो हाँ, तो अपने ये सब चांसेस बातें हाई आपको होते हैं। ध्यान रखनी। मैं ये क्यों करने के लिए बोल रहा, क्योंकि अभी एक जॉब के पीछे बहुत जन है, तो कुछ यस ना कुछ ऑफ तो करना कोर्स। पड़ेगा अपना यस। शॉर्टलिस्ट होने के लिए। या हम्म। शॉर्टलिस्ट होना मेन है, फिर इंटरव्यू वगैरह तो निकल जाता है। क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया, लाइक बहुत सारे, एक छोटी सी जॉब पोजीशन है 50 लोगों के लिए, 200 3,000 4,000 ऐसे लाइक एप्लीकेशंस आते रहते हैं। हाँ तो इन सब में आपका हाँ, शॉर्टलिस्ट होना, उनसे भी लाइक 5-10 शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं इंटरव्यू के लिए। तो इनमें से सब कुछ निकलना तो बहुत वही। मुश्किल है। तो आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क लेना ही हम्म। पड़ेगा, थोड़ा झोल झाल तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, आपको अगर निकालना है तो थोड़ा कुछ हाँ। करना पड़ेगा। तो ये सब लाइक बेसिक स्किल आपको लाइक ध्यान में रखना है, क्योंकि इतने सारे स्किल्स होते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि हर एक के पास उतने सारे उतने से सिमिलर होंगे, पर ऐसा नहीं होगा कि पूरे के पूरे स्किल्स होंगे। तो आपको थोड़ा बहुत देखना है, रिसर्च करनी है। और मेन बात क्या है, रिज्यूमे में मुझे बताना था कि कीवर्ड्स वगैरह, तो कीवर्ड्स वगैरह के बहुत सारे तो एटीएस ध्यान स्कोर रखने या। हैं। यस, क्योंकि एटी स्कोर उससे हम्म। बढ़ता है। लाइक मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह देखे थे, तो प्रोजेक्ट्स में आपने क्या एफिशिएंसी है, क्या एफिशिएंटली काम किया है, लाइक कितना एफिशिएंट परसेंट आपने उतना काम किया है, तो वो से मैंने रिज्यूमे देखे हाँ, लाइक। नंबर इन द सेंस ना। हाँ, नंबर्स, हम्म। ज्यादातर नंबर्स हम्म। वगैरह डालने के हम्म। लिए बोलते हैं, तो आप वो भी हाँ देख सकते हैं। चैट जीपीटी से काफी मदद मिल जाती है यार, क्योंकि बहुत सारे रिज्यूमे वगैरह पूरे हाँ। लाइक आप डिस्क्रिप्शन कॉपी कीजिए पूरा प्रोफाइल का, चैट जीपीटी डालिए, आपका रिज्यूमे डालिए, आइडेंटिफाई कीजिए क्या कमी है आपके इसमें, और वो फिल करने का ट्राई कीजिए, वो स्किल्स वगैरह क्या है, वैसा हो जाता है मोस्ट ऑफ द थिंग्स।
हाँ एम सर, राइट? बस एक कमांड देनी चाहिए उसे, या कि प्लेगरिज्म को अवॉइड करें। मीन्स यस यस। प्लेगरिज्म इन द सेंस, प्लेगरिज्म यानी जिनको बताने उनको बोल देता कि चैटबॉट जब कुछ भी देता है ना, तो हम्म कुछ ना कुछ इंटरवल पे कुछ ना कुछ कंप्यूटर लैंग्वेज है ना उसकी होती है, तो यस। दूसरा अगर चैटबॉट है ना वो आइडेंटिफाई कर देता है कि ये हम्म किसी ने खुद ने नहीं लिखा, चैटबॉट ने हम्म लिखा। तो अपन कमांड अगर दे देंगे ना अवॉइड प्लेगरिज्म करके, तो हम्म। वो एज अ ह्यूमन मेड लिख के देगा। सो यस यस। अपना रिज्यूम उधर रिजेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएगा। यस यस। हम्म, ओके दैट्स ग्रेट। या सो अभी लाइक एंड पार्ट में मूव ऑन करते हैं हमारी वीडियो के। ओके। सो लाइक एक आधा लाइक फ्रेशर स्टूडेंट है या फिर मेरा जैसा फाइनल ईयर स्टूडेंट है, उसको क्या है लाइक एक एक्सपीरियंस के लिए 6 मंथ्स में या फिर 3 मंथ्स में एक यदि कोई भी इंटर्नशिप क्रैक करनी है, लाइक डेटा एनालिस्ट लीजिए या फिर कोई एग्जाम्पल ले, तो लाइक डेवलपमेंट के लिए करना है, स्पेशली मैं डेवलपमेंट उनके बोलूंगा, ठीक है, स्पेशलाइजेशन वगैरह कोई सी भी स्पेशलाइजेशन चल जाएगी। तो 6 मंथ्स में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं कोई भी स्टूडेंट? 6 मंथ्स में सबसे पहले अगर रिलेटेड चाहिए एक आधा स्पेशलाइजेशन, एज अ डेटा एनालिस्ट आप लीजिए बताओ। आप। एज अ डेटा ओके, एनालिस्ट लीजिए। एज अ डेटा एनालिस्ट के लिए सबसे पहले अगर किसी को बतानी है इसमें क्या चाहिए, तो सब लिंक्डइन पे जाओ, डेटा एनालिस्ट इंटर्न डालो, तो फिर हम्म जितने भी जॉब्स आएंगे रिलेटेड इंटर्नशिप, वहाँ पे हम्म डिस्क्रिप्शन पढ़ो। अगर आपने 5-10 भी पढ़ लिया ना, तो आपका आइडिया आ जाएगा इसमें क्या क्या स्किल्स चाहिए। वो एक यस। पेन पे नोट कर दो और कॉमन वाले हम्म। स्किल्स करो, और उस पे आई थिंक स्टडी कर लो, मीन्स कंप्लीट कर लो वो स्किल्स। अगर ओके वो हो गया यस ना, यस। तो उसके बाद जस्ट नॉर्मली अप्लाई करते जाओ, जॉब डिस्क्रिप्शन यस। के हिसाब से रिज्यूम इनहांस करते जाओ और अप्लाई करते जाओ। मीन्स ओके। बाकी के प्लेटफॉर्म मैंने एक्सप्लोर नहीं किए, अगर हो सके तो बाकी के प्लेटफॉर्म इंटर्नशाला वगैरह उधर से भी अप्लाई करो। तो जितना यस यस। ज़्यादा अप्लाई करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि मिल जाएगा। यस और यस। फिलहाल की कंडीशन में पेड रोल पे जॉब के लिए ना फ्रेशर्स को कोई हायर नहीं कर रहा है। बहुत खराब रियलिटी है चालू है यस अभी के यस। वर्ल्ड में, क्योंकि कंपनी में भी डायरेक्ट हम्म, एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, लाइक कंपनी का भी कहना है हमें कोई ट्रेन वगैरह हाँ करना ही है, डायरेक्ट आपके पास लाइक कोई भी डेवलपमेंट वगैरह कर लिया है फिर स्पेशलाइजेशन है, आ जाओ कंपनी में डायरेक्ट लग जाओ। क्योंकि कंपनी अभी कोई भी खर्चा नहीं करना चाहती है एक एम्प्लॉय के लिए, तो उनकी ट्रेनिंग के लिए कोई खर्चा और करे। यस। मोस्टली टाइम भी बच जाता है कंपनी का। यस यस, बहुत सो सारी चीजें। इन द सेंस बहुत लोग क्या करते हैं, मीन्स इंटर्नशिप देखते हैं बट वो पैसे नहीं दे रहे हैं ना, इंटर्नशिप अपन फ्री में काम कर रहे हैं ना, तो बहुत लोग यस। वो स्किप कर देते हैं। तो वो नहीं हम्म। करना चाहिए। एटलीस्ट आप हमको है ना एक्सपीरियंस मिल रहा है ना, वो काफ़ी यस बेटर है उससे। पैसे यस तो यस। बाद में भी कमानी है। यस यस। अब जब तक या इंजीनियर के पहले पहले है तो जितना हो सके उतना अच्छे से एक्सपीरियंस गेन कीजिए। बाकी तो देखने है फिर पैसे के लिए करना है जो कुछ भी। अभी लाइक आपका एक बेनिफिट, लाइक एक प्लस पॉइंट बन जाता है कि आपके पास एक इंटर्नशिप में एक एक्सपीरियंस हो जाता है, आपके रिज्यूमे में एक एक्सपीरियंस ऐड हो जाता है। क्योंकि कभी कभी भी कोई लाइक किसी भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई करते हैं, एक्सपीरियंस देखता ही है, क्योंकि लाइक इंटर्नशिप वगैरह हो गया, कुछ ना कुछ हो गया, तो रिज्यूमे में दिखता है कि आपका रिज्यूमे थोड़ा भरा भरा भी लगता है कि आपके पास नहीं कुछ इंटर्नशिप वगैरह है। तो एक एटी स्कोर में भी आपकी थोड़ी हेल्प हो जाती है, लेकिन इसमें आपका एटी स्कोर भी बढ़ता है। तो दिस इज ऑल अबाउट, लाइक आप देख हाँ सकते हैं कैसे आप 6 मंथ्स में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आर्यन ने आपको एक अच्छा सा रोड मैप दिया है कि वैसे वैसे प्रिपेयर कीजिए। लाइक आपको अगर किसी के जॉब पोजीशन के लिए जाना है, लिंक्डइन पे जाइए, जॉब पोजीशन की इंटर्न वगैरह देखना है तो देखिए, जितने भी डिस्क्रिप्शन में स्किल दिखती है वो सारी की सारी स्किल अच्छे से सीखिए। चैट जीपीटी कीजिए या फिर कोई वीडियो यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह लेक्चर्स वगैरह होते हैं, यूडेमी में भी कोर्स होते हैं, वहां से देखिए, अच्छे से कीजिए। 6 मंथ्स में एकदम अच्छे से हो जाता है। लाइक आप चैट जीपीटी पर पूरा प्लान भी डालेंगे ना, तो 6 मंथ्स में वो भी आपको अच्छे से एक प्लान दे देता है। ठीक है, बाकी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा करते हैं। 6 मंथ्स में अगर करना ही है तो करना ही है। लाइक फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए बोलेंगे तो उनके पास अभी पता चलता है, फाइनल के एंड से में आता है, जॉब कुछ वगैरह हाथ में नहीं है, तो उनको पता चलता है इसका कितना मैटर करता है 6 मंथ्स में कितना करना है। ओके, सो उनके लिए भी ये काफी हेल्पफुल रहा होगा। तो लगता है मुझे ये वीडियो रैप अप करना पड़ेगा अभी। लाइक हमने ऑलमोस्ट सारी की सारी क्वेरीज यहाँ पर डिस्कस कर लिए। ओके, सो तभी भी अगर लाइक स्टूडेंट्स को, अगर हमारे ऑडियंस को कोई भी क्वेश्चंस वगैरह है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं आर्यन से कांटेक्ट करूंगा और उनके जो भी क्वेश्चन वगैरह रहेंगे आपके रिजॉल्व करने का ट्राई करूंगा। और जिन लोगों को आर्यन से कनेक्ट करना है तो मैं आर्यन की लिंक्डइन की प्रोफाइल भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय।